The story is a satire on the conceit of those in power. What do you mean by conceit? आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा दंभ. दंभ करके एक वर्ड आता है हिंदी में. घमंड जिसको हम बोल सकते हैं. घमंड जिसको हम बोल सकते हैं. गुमान करना जिसको हम बोल सकते हैं. दैट इज योर कंसीट, योर एरोगेंस, योर प्राउड, योर ईगो इज योर कंसीट. एक मिनट में जो मेरा ये पैड ज्वाइन करने दो. या ऑलराइट. क्या लिखा हुआ है? द स्टोरी इज अ सटायर ऑन दोज कंसीट इन पावर. जो लोगों के पास पावर है, अथॉरिटी है, राइट्स हैं, उनको उन पावर को लेके घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, प्राउड आ जाता है. और ऐसे ही लोगों पे एक बहुत बड़ा व्यंग्य, बहुत बड़ा सरकास्टिक कमेंट जो है वो ऑथर ने दिया है. तो हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी? ऑथर ने स्टोरी के अंदर ड्रामेटिक आयरनी को कैसे एम्प्लॉय किया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज आयरनी. आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस where the statement given conveys an opposite message of the meaning. जो स्टेटमेंट बताया गया है और जो स्टेटमेंट के पीछे का मीनिंग है वो एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं. आपको बोला कुछ जाता है, उसका मतलब उसका बिल्कुल विपरीत निकलता है. तो ड्रामेटिक आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस where the statement given by the author is the exact opposite of the meaning behind the statement. It is usually used in sarcastic way or a dramatic way, so to emphasize मतलब किसी पे जोर देना, किसी पे तवज्जो देना, किसी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. तो it is mostly used to emphasize or to signify the moral of the story. स्टोरी के मॉरल को बताने के लिए हमें ड्रामेटिक आयरनी का यूज करना पड़ता है. ऑथर्स ड्रामेटिक आयरनी का यूज करते हैं. दैट इज योर ड्रामेटिक आयरनी. फिर इन द गिवन स्टोरी कल्कि, जो हमारे राइटर है, हमारे ऑथर है, उनका नाम है कल्कि. कल्कि एम्प्लॉयज ड्रामेटिक आयरनी एट मेनी प्लेसेस. अलग अलग जगह उन्होंने ड्रामेटिक आयरनी को इन्वॉल्व किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, when the Tiger King was just 10 days old, when the Tiger King was 10 days old, the astrologers made a prediction about his death. Then the Tiger King asks them that what will be the cause of my death. The astrologers predict that the death will be caused by the tiger. Hence, the Tiger King says to them that let the tigers beware, let the tigers be careful, let alert the tigers, give warning to the tigers. So, even though he was just a 10-day-old child, he did not know what lies in the future. He did not know if he was going to be powerful or strong or not. He just based his entire what we can say dialogue on the prediction of the astrologer. उसने अपने आप को इतना महान बना लिया, इतना महान मान लिया, that what he did, he considered the astrologer's prediction as a final statement. और उसने अपने आप को इतना महान समझ लिया और बोलता है कि let the tigers beware. A 10-day-old child is threatening an entire wild beast, which is not a plausible situation. Plausible मतलब जिसकी सराहना कर सकते हैं, जिसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिसको एडमायर कर सकते हैं. It is not an appropriate situation, right? फिर next, the Tiger King spent his entire life chasing tigers. All his social matters, kingdom matters, political matters were set aside by him. He even married a bride
whose kingdom was rich in tiger population. He did not pay attention to even his son. He was set on the tiger hunting mission to kill the 100 tigers so that he can prove the astrologer's prediction wrong. Of course, he had the power, he had the strength, but also with that power and strength, he had a sheer arrogance. उसके पास में क्या था? Arrogance था. उसके पास में घमंड था. So to fulfill his one mission, he had to pay bribe of 3 lakh rupees to a British officer. He never paid any attention, any care to his social matters, political matters, even to his family matters. He was so engrossed, he was so consumed, he was so absorbed in the tiger hunting mission that day and night he used to dream about killing tigers. But ultimately, finally, at last, conclusively, उसकी डेथ किससे होती है? The cause of the death of the Tiger King was a wooden tiger, a tiger which was not even real, a tiger which was a play toy for the prince. Play toy मतलब खिलौना जिससे खेला जाता है. तो एक खिलौने से उसकी डेथ हुई. तो all the strength, all the valor, all the what we can say boldness or courage was gone to vain, gone to vain. सब धरती में चला गया, सब पाताल में चला गया. Thank you, sir. By your wishes, we won one election and all the results. So don't know what will happen tomorrow, but thanks for your wishes. Okay, congratulations, महक. आपकी दादी जी जीत चुकी हैं इलेक्शन. अब पार्टी बनती है. Once the pandemic gets over और schools open हो जाती हैं, तो we will definitely have a treat from your side. तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा कि इतना महान राजा, इतना बड़ा राजा, इतना पावरफुल राजा जिसने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया, डिवोट कर दिया टू किल एंड हंट टाइगर्स, और अल्टीमेटली उसकी डेथ किससे होती है? एक खिलौने से, एक प्ले टॉय से, एक वुडन टाइगर से जो कि रियल भी नहीं है. दिस इज क्लियर और नॉट? दिस इज क्लियर और नॉट? किसको डाउट है जल्दी से पूछो कि सर ये वर्ड समझ में नहीं आया, ये लाइन समझ में नहीं आई, या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. जल्दी से पूछ लो. मैंने आपको इंग्लिश में ही लिख के बताया है आंसर्स, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स भी सप्लाई किए हैं, तो यू हैव टू यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स. What is author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? See, over past hundreds of years, human beings have been exploiting. Exploiting का हिंदी में मतलब क्या होता है? Exploit करना. Exploiting. Exploit का हिंदी में मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ. Exploit मतलब अत्याचार करना. To torture something. To torment someone or something. To extract an advantage. अपने भले के लिए दूसरों को दुख देना. That is what your exploitation means. Okay, Mehak, no problem. Go enjoy. Do recover this lecture. All right, तो अत्याचार करना. तो ऑथर ने एक इनडायरेक्टली कमेंट दिया है ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग की इच्छाओं पर, उनके डिजायर्स पर इनोसेंट एनिमल्स को कितना अफेक्ट होता है, कितना इम्पैक्ट होता है, कितना टॉर्चर सहन करना पड़ता है, इस पे ऑथर ने इनडायरेक्ट कमेंट दिया है. क्या इस स्टोरी में देखने को मिलता है? ऑफ कोर्स. टाइगर किंग की एक ही इच्छा थी, 100 टाइगर्स को मारने की. वो इच्छा कैसे आई? प्रोफेसी के थ्रू. क्या प्रोफेसी सही होती है हर बार? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वी डू नॉट नो. बट एक महाराजा की सनक की वजह से, उनके विम्जी की वजह से, उनके विम्जी की वजह से आज
महाराजा की विम्सी की वजह से 100 टाइगर्स आर डेड, 100 टाइगर्स आर डेड। सो वही बताना है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स की वजह से एनिमल लाइफ को अफेक्ट होता है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे आंसर को कि ओवर द पास्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स एंड वाइल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहां पर वो रहते हैं। For our own selfish motives, we have started cutting down trees, destroying forests and jungles so that we can build our own properties, our own malls, our own infrastructure over there. We also use animal skins for different cosmetic products, for different accessories, for different clothing lines. All these happen just because of lifestyle of human beings. हमारी लाइफस्टाइल के लिए हम एनिमल्स को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। The animals who cannot even speak or who cannot even communicate, they are subjected, ये देखो, they are subject to brutal treatments. They are part of experiments of different cosmetics and medications. medicines के लिए और cosmetics के लिए हम लोग animals का use करते हैं। तो that is affecting animal lifestyle और wild life जिसको हम बोल सकते हैं on a very larger scale. In the given story, the Tiger King or the Maharaja of Pratibandpuram was a whimsical fellow, was a whimsical king. Just to prove an astrologer's prediction wrong, he went on a rampant मतलब किसी मिशन पे निकल जाना। He went on a rampant to kill hundreds of tigers for his own selfish motive, to defend his own life. In that process, he harmed 99 के 100 tigers. He harmed 100 tigers, and those tigers did not even do anything wrong to him, did not even harm him, did not even put him in the danger. They were just residing in the forest, they were just living in the jungle. Maharaja went into their habitat, went into their jungles, and killed them with his own guns. The author also mentions that at that time, high ranking British officers used to hunt tigers as a hobby, as a field of interest, which also eventually impacted the population of tiger. और इस वजह से टाइगर्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट वाइज बता देता हूं कैसे आपको आंसर को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन कि हम एनिमल्स के साथ में क्या क्या करते हैं। ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स वो हमें बताना है। उनको कॉस्मेटिक्स में हम उनका यूज करते हैं, उनके एक्सेसरीज और क्लोथ्स में हम उनका यूज करते हैं, मेडिसिन में हम उनका यूज करते हैं, और नहीं तो फन हंटिंग में हम उनका यूज करते हैं। फिर आपको स्टोरी का पार्ट लेके आना है। स्टोरी में किंग ने क्या किया, 100 टाइगर्स को मारा फॉर प्रूविंग एन एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। उसमें टाइगर्स इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था। फिर हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो भी अपने अपनी इच्छा के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इनोसेंट एनिमल्स को टारगेट करते थे, मारते थे। ऐसे ही टाइगर्स, लायंस, चीता, व्हाट वी कैन से, बेयर्स, जिराफ्स, एलिफेंट्स, ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स अपने फन के लिए, अपने विलफुलनेस के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए मार देते थे। और इसका इम्पैक्ट जो है वो इनोसेंट एनिमल्स पे आता है। तो ऑफ कोर्स ऑथर ने एक इनडायरेक्ट कमेंट दिया है जो हमारे लिए क्या है, आई ओपनर है। इट इज एन आई ओपनर। हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हमें इनोसेंट एनिमल्स को हार्म करना चाहिए? डू यू फील लाइक यू शुड हार्म इनोसेंट एनिमल्स, यू शुड इंडेंजर दीज एनिमल्स? वैसे भी टाइगर पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, बहुत गिने चुने टाइगर्स रह चुके हैं। तो ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू नॉट हार्म दीज इनोसेंट एनिमल्स। चलो, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर और नॉट? Yes? All right.
वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन। Today's last question and third question. How would you describe the behavior of the Maharaja's minions? अच्छा, मिनियंस इनक्रेडिबल्स वाली मूवी है ना? इनक्रेडिबल्स वाली मूवी देखी है आप लोगों ने? मिनियंस वाली मूवी किस किसने देखी है? इस तरह के कुछ क्रिएचर्स होते हैं। वो यार डांगरीज पहनते हैं, पता नहीं क्या पहनते हैं। मिनियंस होते हैं। यस, मिनियंस मीन्स जो आपसे छोटा है, अ टाइनी पर्सन, अ मिनिएचर पर्सन, स्मॉल इन साइज। यहां पे महाराजा के मिनियन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एग्जैक्टली ऋषभ येलो कलर के होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, महाराजा के मिनियन क्या हो सकता है? व्हाट इज द मिनियन ऑफ महाराजा? महाराजा के मिनियंस कौन कौन थे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मिनिस्टर, उसके दीवान, उसके अंडर में ऑफिसर्स, उसके काम करने वाले, वो सारे महाराजा के मिनियन। अभी मोदी जी के लिए बोला जाता है मोदी भक्त। भक्त मतलब क्या हुआ? जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, जिसको लॉजिक नहीं पता, जिसको रीजन नहीं पता, जिसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। द पर्सन हु फॉलो समवन ब्लाइंडली इज अ पर्सन्स मिनियन बोल सकते हैं। उनके चमचे, उनके चमचे, चेले और चमचे। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजा's minions towards him? Can the villagers be included? Villagers minions नहीं थे। विलेजर्स वर नॉट मिनियंस ऑफ कोर्स। वो उसके अंडर में रह रहे थे तो उनको काम करना पड़ता था। दैट्स नॉट अ मिनियन बिहेवियर। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और आर दे ड्रिवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम? क्या वो अपनी अंदरूनी सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, अर्नेस्टी से, डिसिप्लिन से महाराजा के ऑर्डर्स को ओबे करते थे, या उनके मन में डर लगा रहता था? इट वॉज फ्रॉम द फियर, it was from the fear or horror or terror of Maharaja. Do we find a similarity in today's political order? क्या आज के political orders में भी ये similarity है या नहीं है? Let's see. First of all, of course, Maharaja's minions were not sincere or were not honest, were not earnest. Honest is a word, earnest is a word, और sincere तो है ही, truthful भी आप लिख सकते हो, truthful. They were not truthful, they were not honest, they were all selfish people, वो भी selfish थे। They were driven by selfish motives. They used flattery, flattery मतलब चमचागिरी करना, fake praises देना, fake praises। एक वर्ड आता है sycophancy, sycophant। सिकोफैंट होना मतलब अ पर्सन जो मक्खन लगाता है, जो चापलूसी करता है, जो फ्लैटरिंग करता है। बूट लिकर्स, यू कैन से बूट लिकर्स। तो ऑल दीज पीपल, एक और वर्ड आता है एड्यूलेटर, या अभी याद आया, एड्यूलेटर इज अ वर्ड। ये सारे वो पर्सन हैं जो आपकी फेक तारीफ करते हैं खुद के मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो द मिनिस्टर्स और द ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वर sycophant and bootlickers. They did not actually respect the authority of Maharaja. They did not respect that he was the king of the entire kingdom. They only followed his order because of the sheer fear. They thought that if they do not follow the order of Maharaja, they might lose their job and they might get poor. They cared for their own designation, their own post and position. They cared about their own authority. With the company of Maharaja or with the shadow of Maharaja, they got certain amount of power which will be taken away from them if they did not respect Maharaja.
So they started praising him in a very fake manner, in a very sycophant manner, in a very flattering manner, which was far from sincerity or honesty or truthfulness. Far from ऑनेस्टी, फार फ्रॉम ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी से बहुत बहुत दूर उनकी फीलिंग्स थी, वो ऑनेस्ट नहीं थे, वो सिंसियर नहीं थे. In the similar way, in today's political order also, there are many political leaders. At last, minister had sacrificed his own tiger because महाराजा ने उसको बोला था कि तुम भी अपनी जॉब छोड़ के चले जाओ, तुम भी अपना रेजिग्नेशन दे दो. तो महाराजा के डर से, महाराजा एक विम्सिकल फेलो था, एक एक्सेंट्रिक फेलो था, तो इस वजह से दीवान को लगा कि अब मुझे मेरी जॉब नहीं खोनी पड़ जाए, इसलिए उसने अपना सैक्रिफाइस दिया. तो ये तो और सिकोफेंट होने का ही एक प्रूफ है कि जब कुछ नहीं बचा तब जाके उसने अपना सैक्रिफाइस दिया, बाकी उसने महाराजा को इतने दिन परेशान होने दे दिया. So in today's political order also, there are lots and lots of political leaders who are not sincere towards serving the society, towards serving the government, or towards serving the public. They do not care about the concern or advantages or welfare of the common public, of the general public. They are only in the position to serve their own motives. एक word आता है to, यहाँ मैं मिटा के लिखता हूं यहाँ पे, वेट देयर बीक्स. वेट देयर बीक्स मतलब रिश्वत लेना. रिश्वत लेने के लिए हम बोलते हैं वेट देयर बीक्स. आप किसी पंछी के चोंच को गीला करते हो, वेट करते हो, so that the panchi will come and help you out. That is wetting the beaks. So they are in the political system, they are in the political order just so that they can wet their own beaks. They can earn more and more money in an easy form by exploiting poor people. So they are not sincere, they are doing it out of their own selfish motives. तो ये आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखना है. ये क्लियर है? This is clear to everyone? Yes? Very good. Yes, okay. आई वॉन्ट टू नो आप ये लाइव क्लास, एक मिनट क्या था वो मैसेज ऊपर चला गया, वेट. आई वॉन्ट रिकॉर्ड करके कहाँ डालते हो? मैं स्कॉलर्स ईआरपी ऐप में डालता हूँ. अभी मेरा टाइगर किंग का डालना बाकी है. मेरी बीमार हो गया था 2-4 दिन से मैं, तो नाउ आई विल पुट इट, डोंट वरी. मैंने आपका ऑन द फेस ऑफ इट डाल दिया है, क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं, आप वहां से रिकवर कर सकते हैं इफ यू हैव मिस्ड इट. टाइम ऑफ क्लास इज अबाउट टू ओवर, सो डाउट विल बी क्लियर आफ्टरवर्ड्स. नहीं दिव्यांश, 10 मिनट बाकी है, 2 मिनट का काम है. तो आज के लिए 3 क्वेश्चंस काफी हैं. 3 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अ डाउट ऑफ माय डियर स्टूडेंट. दिव्यांश का एक डाउट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ये रहा व्हाइट बोर्ड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बी विद मी. इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है. चलो हम थोड़ा स्टार्टिंग से समझते हैं. दिव्यांश को ऐसे नॉलेज है, बट मैं चाहता हूं सबको समझ में आ जाए. एक तो आपके 3 टेंसेस होते हैं. नहीं नंदिनी, मेरे को बताने दो, मैं आपसे पूछ लूंगा जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा. 3 सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, शायद मैंने कल दिव्यांश को भी बताए थे. आई हैड डिनर, आई हैड डिनर, sorry, and I have had dinner. 1, 2, 3. इन तीनों में से सिर्फ एक सेंटेंस करेक्ट है और 2 सेंटेंस रॉन्ग है. कौन से करेक्ट है, कौन से रॉन्ग है, कौन बताएगा? 1, 2, 3, विच वन इज करेक्ट? पहले करेक्ट का मुझे बता दो कि सर ये सेंटेंस करेक्ट है और बाकी 2 रॉन्ग है. नंदिनी ने बोला फर्स्ट इज करेक्ट. देखो टेंस का बहुत गहरा नॉलेज चाहिए इसके लिए. आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि सबको आंसर आ जाए.
बट मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को ग्रामर का नॉलेज हो। अभी तक आपने ग्रामर कैसे पढ़ी, आई हैव नो आइडिया, बट अब मैं हूं आपके साथ में। मैं चाहता हूं आपकी ग्रामर स्ट्रांग रहे। Swaleha and Harshit is saying second sentence is correct. All right, all right. सिर्फ 3 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है अभी तक। चलो छोड़ो, मुझे टेंस बता दो। ये कौन सा टेंस है? विच टेंस इज दिस? विच टेंस इज दिस स्टूडेंट्स? अरे हो गया, छोड़ दो उस बात को, सही गलत को हम बाद में भेजेंगे। नंदनी एंड हर्षित बोल रहे पास्ट। अरे देवताओं, पास्ट में 4 टेंस होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है ये? विनीता एंड स्वलेहा एंड दर्शन आर सेइंग पास्ट परफेक्ट। दर्शन ने बोला है इनडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। चलो वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने परफेक्ट बोला है। क्विकली क्विकली व्हाट विल हैपन? मेरे पास किताब है। मेरे पास किताब है, इसको ट्रांसलेट करो, फटाफट से ट्रांसलेट करो इसको। इंग्लिश में बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। मेरे पास किताब है। I have a book, right? अब ये have जो है बच्चों, आपने बचपन में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपका मतलब वर्ब का होना तो कंपलसरी है ही। यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है? हैव, होना। होना इज द वर्ब। आपके पास किताब होना इज, इट इज योर क्रिया, इट इज योर वर्ब। तो दिस हैव इज द वर्ब। आई आपके पास है, आप सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपके पास क्या है? बुक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट? आई हैव अ बुक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट? यहां आते हैं आई हैड डिनर। यहां पे आई हैड डिनर, ये हैड इज द वर्ब, इट इज नॉट एन हेल्पिंग वर्ब। जो बच्चे पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में अगर आपको पता है तो हम क्या यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड तो आता ही है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। जैसे आई हैड डांस्ड, तो दिस हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, डांस्ड इज द वर्ब का थर्ड फॉर्म। पर यहां पे क्या वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं, दिस इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मैं आपको बोलूं आई डांस्ड और मैं बोलूं आई हैव डांस्ड और बोलूं आई हैड डांस्ड, अब आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट बिकॉज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट बिकॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पे आ जाओ अब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दिस इज पास्ट परफेक्ट। ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? राइट, हो गया ये क्लियर? यहां पे कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? जल्दी से बता दो मुझे। एनी डाउट यू हैव? नो? नो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले आपके लिए। तो कभी कभी आपने देखा होगा हैव जो है वो नॉर्मल वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है, और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है। और दोनों को साथ में यूज करते हैं किन किन टेंस में? पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम आते हैं फटाफट से इन दोनों टेंसेस की यूज पे, इन दोनों टेंस की यूज पे आते हैं। क्या है? पास्ट परफेक्ट। मैं आपको टाइमलाइन पे समझा देता हूं। ये आपका पास्ट, ये प्रेजेंट,
एंड दिस इज योर फ्यूचर। हमें इन दोनों से मतलब ही नहीं है। क्या होता है, पास्ट में यहां कोई इवेंट हुआ और उस इवेंट से पहले कोई इवेंट हुआ। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। 100 out of 100 इज परफेक्ट, दिस इज कंप्लीट। इस इवेंट से पहले जो इवेंट हुआ है, इस इवेंट से पहले इवेंट हुआ है, इस इवेंट के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, इंडेफिनिट। और उससे पहले वाले इवेंट के लिए पास्ट परफेक्ट, कि इस इवेंट के होने से पहले ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है परफेक्टली, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो मैं जब सेंटेंस बोलूंगा, जेठालाल had had dinner before बबीता जी arrived। पहला काम कौन सा हुआ, जेठालाल जी ने डिनर खा लिया, बबीता जी बाद में अराइव हुई। तो बबीता जी के अराइव होने से पहले ही जेठालाल जी ने डिनर कर लिया। तो जेठालाल had, दिस इज पास्ट परफेक्ट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। ये समझ में आ रहा है? दिव्यांश, आप मुझे क्लियर करना, ये समझ में आ रहा है? यस, जल्दी से बताओ, मैं आपका ही वेट कर रहा हूं। यस, ये समझ में आना चाहिए। कोई एक पास्ट इवेंट से होने से पहले दूसरा पास्ट इवेंट जब कंप्लीट हो जाता है, तब आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है, had। अगर आप ये लिखते हो जेठालाल had डिनर और फुल स्टॉप, तो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि आपको पहले वाला इवेंट डिस्क्राइब करना रहेगा, पहले वाला इवेंट डिस्क्राइब करना रहेगा कि ये इवेंट हुआ, उससे पहले ये इवेंट हुआ। गॉट इट? और प्रेजेंट परफेक्ट में कि जेठालाल ने जस्ट अभी खाना खत्म किया है, तो क्या होगा, जेठालाल हैव जस्ट हैड डिनर। जेठालाल हैव जस्ट हैड डिनर। जस्ट वाले केस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। आई डोंट थिंक सो ये चीजें पहले आपको किसी ने बताई होगी। किसी ने बताई है तो मुझे बताओ कि सर हाँ हमने ये पहले पढ़ रखा है। ग्रामर की टीचर्स नहीं बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इतना स्पेसिफिकली ये टाइमलाइन वाला नहीं बताते हैं। तो होती कोशिश, क्या करेंगे, कल आपका टाइगर किंग निपटाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लेटर राइटिंग लेंगे, और उसके बाद में हम 2 दिन जो है वो टेंसेस समझेंगे। टेंसेस और ग्रामर और जो भी इसमें आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स और टेंसेस, ये 2-3 टॉपिक्स हम लेंगे ताकि आपकी बुद्धि खुल जाए, थोड़ी आपकी जो इंटेलेक्ट है वो खुल जाए। वी विल डू दिस थिंग इन फ्यू डेज। दिव्यांश, अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को हम यूज कैसे और कब करते हैं, राइट? चलो, that's it for today. So due to network issues, I'm logging out again and again, so I'm not getting anything. अब यार ये नेटवर्क इश्यू का तो आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया है। इंग्लिश लैबोरेटरी यूट्यूब ऑल्सो एक्सप्लेन वेरी वेल, आई नो इज अ वेरी गुड आंसर। 3 टेंस की टाइप्स को कभी समझ ही नहीं आया कि कब कौन सा यूज करना है। यस, तो वो सब समझेंगे विनीता, डोंट वरी, वी विल टेक 1 क्लास। आपका आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि अभी 11th क्लास में आपको कोई टेंस नहीं समझाता है। बट ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपका एक आध दिन हम सेशन लें टेंस को रिलेटेड, ताकि आप लोग जो है याद करें कि मुझे सर ने टेंस समझाए थे, वो हमें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास खत्म होने वाली है वैसे आपकी। बाय गाइस, सी यू सून टुमारो। डू कंप्लीट योर होमवर्क, डू कंप्लीट योर क्लास वर्क, वट एवर इज गिवन टू यू। बाय बाय, थैंक यू।